is the study of animals. Botany is the branch of biology in which we study plants, right? What is biochemistry? Biochemistry is the branch of biology in which we study the chemical reactions that take place inside the living organisms, right? What is anatomy? Anatomy is the study of the internal structure of the living organisms. तो इसमें भी प्लांट एनाटमी इज डिफरेंट, एनिमल एनाटमी डिफरेंट, ह्यूमन एनाटमी में हम अलग से स्टडी करते हैं, राइट? सो व्हाट इज एनाटमी? एनाटमी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. What is morphology? Morphology is the study of external structure of living organisms. So plant morphology may we study leaves, roots, right? We study stem, we study their modifications. ठीक है? ह्यूमन मॉर्फोलॉजी हम में भी हम जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं वो सब स्टडी करेंगे, राइट? देन व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी microorganisms like bacteria, fungus, diseases, their to microorganisms are studied under microbiology, right? Then moving on to the next branch listed here, biotechnology. In biotechnology, we deal with the manipulation of the living organisms at genetic level, right? So the genetic manipulation of the DNA is studied under biotechnology. ठीक है? उसके बाद आता है proteomics. What is proteomics? This is the branch of biology in which we study proteins. What is the structure of proteins? Various levels of structures of protein: primary structure, secondary structure, tertiary structure, quaternary structure. What are the chemical reactions that proteins undergo? What are the functions of the proteins? Okay, what are the amino acids that constitutes a particular protein? Okay, so all these things are studied under proteomics. Moving on to the next branch, virology. What is virology? The study of viruses is called virology, right? इसमें we study the structure of the viruses, ठीक है, the diseases they cause, okay, the mechanism of those diseases, etc. are studied under virology. The last branch listed here is physiology. In physiology, we study the functional characteristics of living organisms. For example, if I want to study human physiology, I'll study the various systems present in humans, such as circulatory system, respiratory system, excretory system. These all systems are meant for performing the functions in our body, right? Various functions of our body, such as excretion, respiration, blood circulation. So there are various separate systems, okay, which are meant for performing these particular functions. So all these functions are studied under physiology. There are separate branches to study physiology of plants and animals. तो animal physiology अलग subject है, plant physiology अलग subject है और बहुत ही vast subject है, right? So these are the different branches of biology. Any problem till now? तो बहुत ही बेसिक था, आई गेस. नाउ अब हम मेन पार्ट जो है चैप्टर का वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले भी जो किया है उसे बहुत बेसिक समझते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ही बेसिक, लेकिन वो भी बच्चे अनअटेम्प्टेड छोड़ आते हैं. तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एक बार देख जरूर लेना, ठीक है? हेलो और प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यस मैम, आप स्क्रीन रोटेट कर सकते हो प्लीज? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर नेम्स सकते हैं. लेबल्स जो है ना डायग्राम पे काफी छोटे छोटे दिख रहे हैं इसलिए. तुम लोग अपनी भी ये स्क्रीन जूम कर सकते हो, है ना? ठीक है, क्लियर? यस ओके, मैम, ठीक है. ठीक है, ओके. So now we are going to study the structure of the cell, the basic unit of life. You know that all the living organisms, bacteria, fungus, protozoans, plants, animals, each living organism is made up of cells. The organism might be unicellular, multicellular, but one thing is in common. One thing is common in all the living organisms, that all the living organisms are composed of certain basic structural and functional unit of life called as cell. On the basis of complexity of the structure, cells are divided into two broad categories: prokaryotic cell
पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रो मीन्स कैरी ऑन. Pro means before, carry on matlab nucleus. Pro means before and carry on means nucleus. So those cells which lack a well-defined nucleus, or those cells in which a well-defined nucleus is absent, those cells are called as prokaryotic cells. ठीक है. In contrast, eukaryotic cells are those cells which contain a well-defined nucleus, which contain a true nucleus. जिन cells के अंदर nucleus absent है उन्हें हम prokaryotic cell बोलते हैं, और जिन cells के अंदर nucleus present है उन्हें हम eukaryotic cells बोलते हैं. ठीक है. जो prokaryotic cells हैं, the examples of prokaryotic cells are bacteria, PPLO, pleuropneumonia like organism. Bacteria, PPLO, cyanobacteria, all these are examples of prokaryotic cells. Talking about the examples of the eukaryotic cells, animal cells, plant cells, fungal cells, these are the examples of the eukaryotic cell. So in this chapter, we are going to study the diagram of prokaryotic cell, eukaryotic cell also, eukaryotic cell में animal cell भी, plant cell भी. So prokaryotic cell का diagram, animal cell का diagram, plant cell का diagram. ठीक है. सबसे पहले मैं आप लोग को इनका स्ट्रक्चर एक बार एक्सप्लेन करूंगी. Then we'll move further to the various other parts. तो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बैक्टीरिया. तो अगर बैक्टीरियल सेल का डायग्राम आता है, एक सेकंड होल्ड करना मैम, क्लास चल रही है. निशा मैम. तो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम में इफ यू हैव अ लुक, तो ये बैक्टीरियल सेल का डायग्राम भी सेम, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का ही एग्जांपल होता है बैक्टीरिया. सो इफ यू हैव अ लुक एट दिस डायग्राम, तो इसमें फर्स्ट हैव अ लुक एट द एनवलप. एनवलप देखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर. आउटर मोस्ट shown right. This colored outermost covering is called as capsule. This is called as capsule. इसका एक और नाम है ग्लाइकोकैलिक्स. GLYCOCALYX, ग्लाइकोकैलिक्स. मैंने नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है. ठीक है. तो अगर इफ सम न्यू स्टूडेंट्स आर बीइंग एडेड टू योर ग्रुप, आई विल शेयर द नोट्स अगेन, लेकिन मैंने पहले भी शेयर किए थे. राइट. तो उसमें ये सारा अच्छे से मैंने मेंशन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है. सो फॉर नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज कैप्सूल. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. म्यूट योरसेल्फ. जो ये कैप्सूल होता है, व्हाट इज इट्स फंक्शन. सबसे पहली बात तो एक बात समझ लो, कैप्सूल हर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता. इट माइट बी प्रेजेंट इन सर्टेन बैक्टीरियल सेल, इट माइट नॉट. ओके. बट व्हेन इट इज प्रेजेंट, its function is the attachment of the cell to the various surfaces. Suppose has to attach to the host cell. This capsule will play a role. Capsule एक sticky layer है which helps the bacterial cell to attach to the host cell surface. या फिर suppose कोई aquatic bacteria है and it has to attach itself to the rock surface so that it does not flow with the water current. तो ये किससे attach होगा? With the help of capsule. So capsule is a sticky layer made up of certain polysaccharides which helps in the attachment of the bacterial cell to the host cell surface or to other surfaces. Right. So this is capsule which might be present in certain bacteria, might be absent from some. The middle layer mentioned here is this cell wall. Cell wall is present in all the bacteria, and always the main component present in all bacterial cell wall is peptidoglycan. Peptidoglycan is a heteropolymer. तो जो cell wall होती है bacteria की, like the cell wall of the plants is made up of cellulose, similarly the cell wall of bacterial cell is made up of a polymer, a heteropolymer called peptidoglycan. Heteropolymer क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि it is composed of more than one monomeric unit. एक से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन में. इसके 2 मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं. अगर एक होता तो हम इसे क्या बोलते हैं? होमोपोलीमर. बट इट इज कॉल्ड अ हेट्रोपॉलीमर बिकॉज इट कंटेन्स 2 मोनोमेरिक यूनिट्स. क्या है सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन के 2 मोनोमेरिक यूनिट्स? नैग एंड नैम. कैपिटल NAG nag and capital NAM nam. What is nag and nam? N
एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट्स में, इन दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स में दो चीजें होती हैं, दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक तो प्रोटीन्स, ठीक है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो जो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, इफ वी हैव अ लुक एट द केमिकल कॉम्पोजिशन कि केमिकली किस चीज Ma'am, your voice is not coming. क्रैक हो रही है वॉइस? यस मैम। यस मैम, चली गई आवाज, अब आ रही है। ओके ओके, चलो मैं लाउडली बोलती हूँ थोड़ा सा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ठीक है, सो इट अलाउज द कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। किस मॉलिक्यूल को या किस केमिकल को सेल के अंदर आने देना है, किसको बाहर एक्सक्रीट करना है, क्या सेल के अंदर रिटेन करके रखना है, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Why? Because of its property that it is selectively permeable. It allows the selective passage of molecules across it. राइट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट मेम्ब्रेन जो हर सेल के सराउंडिंग्स में मिलेगी। वर्ल्ड का कोई भी सेल हो, इस अर्थ पे कोई भी सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, ऑल द सेल्स आर बाउंडेड बाय अ कॉमन मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल के अराउंड मिलेगी ये सेपरेट। इज इट क्लियर? क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, सो सबसे पहले हमने 3 लेयर्स करी हैं। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट यहाँ पे थी प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरियल सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या होता है? बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरियल सेल का डायग्राम आता है तो आप यही वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ने बाहर बनानी है कैप्सूल, लेकिन मैंने आपको एक बात जरूर बता दी कि बैक्टीरियल सेल में हो सकता है किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल हो, किसी में ना हो। ठीक है, दूसरी बात, जो बच्चों बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही आप लोग को कि आ रही है? बैकग्राउंड नॉइज तो उतनी नहीं नहीं आ आ रही? रही मैम। ओके नहीं आ ठीक रही है, Ma'am, मैम। थोड़ी It's very minimal. You can ठीक है। continue with your lecture. ठीक है, बिकॉज आई एम इन द स्टाफ रूम। तो अगर आप लोग को आ रही है तो आई मे आस्क अदर पीपल टू कीप क्वाइट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम। अगर चल रहा है तो दैट्स ओके। दूसरा जो हमने मिडल वाली लेयर करी, दैट इज सेल वॉल। आई टोल्ड यू दैट मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज पेप्टिडोग्लाइकेन। जैसे सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सिमिलरली द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया is made up of a chemical, is made up of a polymer called as peptidoglycan, which has two monomeric units, NAG and NAM, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. And the main function of the cell wall is to provide rigidity and shape to the cell. Then the innermost layer here is plasma membrane. ठीक है, plasma membrane is also called as cell membrane. It bounds, it forms an envelope around all the cells. ठीक है, and the main function of the plasma membrane is to allow the selective passage of molecules across it. ठीक है, किस मॉलिक्यूल को, किस केमिकल को, किस न्यूट्रिएंट को सेल के अंदर एंट्री देनी है, किसको बाहर भेजना है, क्या सेल के अंदर रिटेन करके रखना है, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ मूविंग ऑन टू द इनसाइड ऑफ द सेल। The inside space of the cell is shown here in sky blue color, right? And it is labeled as cytoplasm. What is cytoplasm? It is the jelly-like matrix. It is the jelly-like matrix which fills the inside space of the cell, right?
जो अंदर वाला स्पेस है सेल का, उसमें ना तो लिक्विड जैसा मटेरियल है ना सॉलिड जैसा. इट इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स which fills the inside space of the cell, and it is the arena where all the chemical reactions of the cell take place. Mute yourself. किसका अनम्यूट हुआ है? तो जो साइटोप्लाज्म है, it is the area, it is the site where all the metabolic reactions, chemical reactions of the cell take place. तो साइटोप्लाज्म के अंदर सारी रिएक्शंस होंगी प्रोकैरियोटिक सेल के टू सस्टेन इट. ठीक है, जितने भी उसको फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो सारी कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म में. राइट. Then you are shown these red tiny dots which are spread throughout the cytoplasm. What are these tiny dots? These are nothing but ribosomes. See, for the growth of the cell, कोई भी तरह का सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, फंगल सेल हो, कोई भी सेल हो, for its growth it requires proteins. You know that the proteins are called as building blocks of life because they are required for growth. तो जो प्रोटीन्स होते हैं सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं. ठीक है, एंड द साइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम्स. So ribosomes are those sites where all the synthesis or the production of proteins take place. Therefore, the ribosomes are also called as protein factories of the cell. ठीक है, राइबोसोम हर तरह के सेल में मिलते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक में भी कोई भी कैटेगरी हो, राइबोसोम्स हर सेल में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हर सेल को प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर इट्स डेवलपमेंट, फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज. ठीक है, एंड राइबोसोम्स आर द साइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. इसके बाद हैव अ लुक एट द सेंट्रल पोजीशन. ठीक है, तो आपको एक कुछ टैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइट बी विजिबल. दिख रहा होगा एक टैंगल्ड थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर. दिस इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, दैट इज डीएनए. ठीक है, अब होता क्या है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, दिस डीएनए डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन अराउंड इट. ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनमें जो डीएनए होता है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. But in prokaryotic cells, there is no specific membrane bounding this DNA. It is lying naked in the cytoplasm. There is no covering around it. Right? That's why this specific type of DNA in the prokaryotic cell, which is not present, which is not bound by any membrane, is called as nucleoid. एक स्पेशल टर्म दे दी गई है प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को, which is not bound by any membrane, which is not present inside the nucleus. That type of DNA is called as nucleoid. There is one synonym for nucleoid, जीनोफोर. GENOPHORE. मैंने आपको नोट्स में मेंशन करके दे रखा है. नोट्स अभी दोबारा से शेयर कर दूंगी फॉर द न्यू एंट्रीज. ठीक है, पहले मैंने शेयर किए थे. तो न्यूक्लियोइड और द जीनोफोर is the DNA of the prokaryotic cell which is not bound by any membrane. ठीक है, which lies naked in the cytoplasm. ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप एनिमल सेल में देखो, ये न्यूक्लियस है ना जो ब्लू कलर का है, इसके अंदर होता है डीएनए. सिमिलरली प्लांट सेल में देखो, ये पर्पल कलर का न्यूक्लियस आपको दिखा रखा है, इसके अंदर होता है डीएनए. लेकिन देखो प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज नो न्यूक्लियस, देयर इज नो मेम्ब्रेन सराउंडिंग द डीएनए. ठीक है, तो ऐसे डीएनए को which lies naked in the cytoplasm is called as nucleoid or genophore. Right? Moving on to the next part, plasmid. Now, what is this plasmid? See, besides this chromosomal DNA which is present in the center, that is nucleoid, center में एक DNA का piece है. This is the genetic material of the cell. है ना, genetic material मतलब that material which is passed on from one generation to the next or from one cell to the another, right? From the parent cell to the daughter cell. जो ये डीएनए होता है, इट कंट्रोल्स ऑल द ट्रेट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमारी हाइट क्या है, हमारा आई का कलर क्या है, हमारा टेक्सचर कैसा है, स्किन टेक्सचर कैसा है, एवरी ट्रेट, हमारे जो इनसाइड बॉडी के प्रोटीन्स हैं वो कैसे हैं, तो एवरी ट्रेट इज डिसाइडेड बाय डीएनए. ठीक है, एंड दिस डीएनए इज प्रेजेंट इन द सेंटर, जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है टेंगल्ड जो थ्रेड वाला न्यूक्लियोइड अभी मैंने बताया. राइट? बिसाइड्स दिस जेनेटिक मटेरियल डीएनए, there is some extra DNA which might be present, not always, which might be present in certain bacterial cell. There might be some additional small circular piece of DNA present in certain bacteria, and this extra piece of circular DNA is called as plasmid.
तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर के दिखा रखे हैं ना। सर्कुलर का मतलब मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल सर्कल शेप में हो, सर्कुलर का मतलब यहाँ पे है कि उसके दोनों जो एंड्स हैं वो फ्री नहीं है, ठीक है, इसमें फ्री एंड्स नहीं है, दोनों एंड्स ज्वाइंट हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं सर्कुलर। और जो प्लाज्मिड है, इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए which is circular in shape, which is smaller in size as compared to the genetic material वाला डीएनए, राइट। अब फंक्शन क्या है, क्यों, क्या रिक्वायरमेंट है इस प्लाज्मिड की? देखो हमारी जो ये बैक्टीरिया है, इनके सर्वाइवल के लिए, इनके ट्रीट्स कंट्रोल करने के लिए जितनी भी जीन्स होती है ना, वो सेंट्रल जेनेटिक मटेरियल वाले डीएनए में होती हैं, जो न्यूक्लियोइड में शो किया हुआ है। लेकिन जो प्लाज्मिड होते हैं उन पे कुछ एक्स्ट्रा जीन्स होती हैं which confer certain additional traits to bacteria in specific conditions, ठीक है, जो वैसे बैक्टीरिया को नहीं चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए नहीं चाहिए, लेकिन किसी किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में दे मे प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट टू द बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसको हम एंटीबायोटिक में ग्रो करें, तो हमारा क्या, हमें क्या समझ आएगा कि वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा एंटीबायोटिक से। लेकिन जिन बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होगा, ऐसा प्लाज्मिड जिसपे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो एंटीबायोटिक वाले मीडियम में भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विच अलाउज इट टू ग्रो इवन इन द एंटीबायोटिक मीडियम। तो ऐसी ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। इसी तरह की कुछ जीन्स जो बैक्टीरिया को किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में एक स्पेसिफिक एडवांटेज देती हैं, इस तरह की जीन्स कहाँ पे होंगी, प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होती हैं। जैसे अब मान लो कोई बैक्टीरिया, कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए हैं विच कैन एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर, ठीक है, तो ये जो आयरन एक्सट्रैक्टिंग जीन है, वो भी कहाँ पे होंगी, वो भी प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होंगी। वो बैक्टीरिया के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो कुछ एडिशनल जीन्स हैं जो बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल ट्रेट्स दे रही हैं, जो नॉर्मली उसको ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए या नॉर्मल सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए। तो इस तरह की सारी एक्स्ट्रा जीन्स, ठीक है, which confer certain additional traits to the bacteria, they are present over plasmid. Is it clear or not? Clear or not? Yes, ma'am. Okay. Background noise तो नहीं आ रही बच्चों? Please interrupt me. जब No. मैम आपकी वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, ये हमें समझ नहीं आया, प्लीज इंटरप्ट राइट अवे, राइट? No, ma'am, it's very clear. Okay. Moving on to the next part, see here, there are certain hair-like, small hair-like structure present or spread throughout the cell on the outermost part of the cell. These are pili, ठीक है। पाइली इज अ प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है पाइलस, PILUS। तो अगर मैंने एक थ्रेड को रेफर करना है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अगर मैं रेफर करूंगी, आई मे कॉल इट पाइलस, ठीक है, और सबको इकट्ठे मिला के मैं क्या बोलूंगी, कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलूंगी, पाइली। अब ये पाइली होते क्या हैं, ठीक है। पाइली बेसिकली आर मेंट फॉर अटैचमेंट ओनली, जैसे कैप्सूल का अटैचमेंट का फंक्शन था ना, सिमिलरली पाइली आल्सो हैव दिस फंक्शन ऑफ अटैचिंग द बैक्टीरियल सेल टू वेरियस सरफेसेस। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजेन होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, दे मेक यूज ऑफ दिस पाइली टू अटैच टू द होस्ट सेल सरफेस। जब भी किसी बैक्टीरिया को या पैथोजन को डिजीज करनी होती है ना, तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज गेनिंग द एक्सेस टू द होस्ट सेल। तो होस्ट में जब वो पहुंचता है, ठीक है, जैसे मेरे अंदर डिजीज करनी है, तो बैक्टीरिया अगर मेरे अंदर एंटर करेगा, द वेरी फर्स्ट स्टेप टू कॉज डिजीज इज टू अटैच टू द होस्ट सेल सरफेस। And there are certain structures present in every pathogenic bacteria which make possible the attachment of the bacterial cell to the host cell surface. Pili is one of those structure, ठीक है। एक तो हो गया ये फंक्शन अटैचमेंट का पाइली का। देयर इज एडिशनल फंक्शन ऑफ पाइली आल्सो। वो क्या है, बैक्टीरियल सेल में वैसे तो आपको पता है कि जब एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है, तो जो प्रोसेस मेनली बैक्टीरिया यूज करता है फॉर द सेल डिवीजन, दैट इज बाइनरी फिजन, जिसमें एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स व्हिच आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल एज वेल एज ऑफ ईच अदर, दे आर कार्बन कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, राइट, यू नो। लेकिन उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना।
कोई दो तरह के सेक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हुआ। लेकिन किसी किसी बैक्टीरियल सेल ठीक है, मैम वॉइस कट हो रही वॉइस क्रैक हो रही है। ओके, अब ठीक, इज इट क्लियर नाउ? है। यस मैम। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, so there is a process named as conjugation. There is a process named as conjugation in which there is a transfer of DNA. There is a transfer of a portion, a small portion of DNA from one bacterial cell to another. The bacterial cell which transfers the portion of DNA is called as donor cell, and the one that receives it is called as recipient cell. For the process of conjugation to take place, the two bacterial cells need to attach to each other. And this attachment is made possible with the help of pili. ठीक है, तो पाइली जो होते हैं दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में, दे फॉर्म अ कॉन्जुगेशन ट्यूब थ्रू विच द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इज मेड पॉसिबल। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ पाइली। इन दिस केस, okay, in this case the pili is called as sex pili, sex pili, sex pili. What is sex pili? Sex pili is the pili which is involved in the process of conjugation, which is involved in attaching two bacterial cells for the transfer of DNA. ठीक है, तो पाइली के दो फंक्शंस मैंने आपको बताए, एक तो नॉर्मल अटैचमेंट का टू द होस्ट सेल सरफेस, और टू मेक द from one bacterial cell to another. Is it clear or not? मैम पर Yes, हाइड्रा ma'am. में नहीं होता ये? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैम हाइड्रा में तो नहीं है ये? हाइड्रा में नहीं है, हाइड्रा तो बैक्टीरिया होता ही नहीं है, हाइड्रा तो बैक्टीरिया होता ही नहीं है, हाइड्रा इज अ काइंड ऑफ एनिमल। ये तो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हाइड्रा इज अ एनिमल, हाइड्रा एनिमल किंगडम में आता है, ठीक है। हाइड्रा इज अ सीलेंट्रेट, हाइड्रा इज अ सीलेंट्रेट, इट्स एन ओके। एनिमल। बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एक कैटेगरी ऑफ सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल है बैक्टीरिया, राइट। तो ये हम बैक्टीरियल सेल का डायग्राम मान सकते हैं जो हमने ये अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक चीज और रहती है अभी हमारी, फ्लैजिलम। एक एंड पे आपको एक ब्राउन कलर का स्पाइरल स्ट्रक्चर इज विजिबल, ठीक है, दिस इज फ्लैजिलम। दिस इज अ सिंगुलर वर्ड। अगर मैं इसी को बहुत सारे फ्लैजिलम को मेरे को रेफर करना है, आई मे एड्रेस इट बाय कॉलिंग फ्लैज, ठीक है। तो फ्लैजिला, फ्लैजिलम एक ही बात है, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। तो व्हाट इज द फ्लैजिलम मेंट फॉर? होता है, इट मेक्स द पॉसिबल द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। देखो, हर बैक्टीरिया डज नॉट हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम बैक्टीरिया आर मोटाइल, सम आर नॉट। दोज विच आर मोटाइल दे पोजेस फ्लैजिला और फ्लैजिलम, ठीक है। एक भी फ्लैजिला हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, ठीक है। सो व्हेनेवर द फ्लैजिलम इज प्रेजेंट, द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लैजिलम इज द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये फ्लैजिलम जो होता है ये रोटेट करता है, जब ये रोटेट करेगा तो बैक्टीरिया इज प्रोपेल्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लास्ट पार्ट, अब ये जो ये मैंने नीचे डायग्राम दिखाया ना, दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल ओनली, क्योंकि ऊपर वाले डायग्राम में एक स्ट्रक्चर नहीं शो कर रखा था, मेसोसोम, इसलिए मैंने ये एक एडिशनल डायग्राम लगाया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी लेबलिंग मिसिंग है नीचे वाले डायग्राम में, बनाना आपको ऊपर वाला ही है, लेकिन ऊपर वाले में एक एडिशन कर सकते हो। मैंने वैसे नोट्स में पूरा डायग्राम जो बनाया है, यू कैन रेफर दैट डायग्राम, बिल्कुल वही का वही डायग्राम आपको देखना है, ठीक है। के लिए जो ये नीचे वाला डायग्राम है, ये मैंने सिर्फ इसीलिए शो किया है, ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम दोनों बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के ही हैं, सिर्फ शो करने के लिए। तो हम देखो ऊपर वाले डायग्राम में नहीं दिखा रखा, ठीक है। और नोट्स मैंने आप लोग को बता रखा है, तो यू विल आस्क कि मेसोसोम क्या होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी ना मैंने, इनर मोस्ट लेयर, एट सर्टेन प्लेसेस दिस इनर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज फोल्डेड इनसाइड द सेल। देखो ये जो येलो वाला पोर्शन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एट वन प्लेस इट इज इनवेजिनेटेड, ठीक है, इट फॉर्म्स एन इनवेजिनेशन एंड इट इज अटैच्ड टू द क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियल सेल, राइट। तो जो ये मेसोसोम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? When the bacterial cell divides by binary fission, right, the cell division of the bacterial cell is
assisted by mesosome. Mesosome takes part in the division of the cell into two. ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, जब भी बैक्टीरियल सेल ने डिवाइड होना होता है तो सबसे पहला काम होता है उसका जो डीएनए होता है वो ड्यूप्लीकेट करता है, डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता है, यानी कि डीएनए की जो डीएनए 1x है वो क्या हो जाता है 2x, उसका अमाउंट डबल हो जाता है। तो जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उसमें भी मेसोसोम का रोल होता है। ठीक है, तो मेसोसोम के दो फंक्शंस हैं इन द सेल डिवीजन, इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवाइड होगा तो बीच में एक सेल वॉल फॉर्म होगी ना, एक सेल सेप्टम फॉर्म होगा ना, वो सेल वॉल ये सेल सेप्टम में मेसोसोम का रोल है, एंड इट आल्सो टेक्स पार्ट इन डीएनए डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, इज इट ma'am. क्लियर और नॉट? यस, Yes, क्लियर। Ma'am. तो आज ओके ओके, तो आज आप लोग का क्या करना है, यू नीड टू मेंटेन अ सेपरेट कॉपी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, एक तो वो बना लो, जितने भी असाइनमेंट्स मैं दिया करूंगी आपको उस कॉपी में मेंटेन करके रखने हैं, सो दैट दे रिमेन इन अ कंपाइल्ड फॉर्म। लास्ट में ऐसा ना हो कुछ शीट्स कहीं हैं कुछ शीट्स कहीं हैं, तो मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर ऑफ बायो। उस डायग्राम को देखिए, अगर बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो मैम मैं नोट्स ये दोबारा वाला से शेयर कर लेती हूँ। बोलो। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैम, वॉइस कट रही थी जो मैम। okay, you need to draw this diagram of prokaryotic cell in your notebook and you need to maintain a separate notebook for biology. जितने भी मैं असाइनमेंट्स दूंगी वो आपको उसी कॉपी में मेंटेन करके रखने हैं। क्लियर? ओके मैम, क्लियर मैम। ओके, ठीक है। Ma'am. प्रोकैरियोटिक डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके लिए आप रेफर कर या फिर जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं मैंने ऑलरेडी शेयर करे थे आपके ग्रुप में, लेकिन हो सकता है कुछ न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए होंगे आपके ग्रुप में, तो मैं अभी शेयर कर लूंगी दोबारा, राइट? ओके या मैम, ओके मैम। ओके, नाउ लेट मी टेक द अटेंडेंस। मैं एक बार स्क्रीन ले लेती हूँ अटेंडेंस का। मैम डू वी हैव टू मेंटेन आवर नोट्स इन द नोटबुक आल्सो? You don't need to, but it's your wish, completely your choice. If you want to write down, जब मैं बोल रही हूँ कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्लासरूम नोट्स बनाने हैं, you're most welcome. Otherwise मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने पहले भी किए थे लेकिन आई गेस किसी बच्चे के मिस हो गए होंगे, ठीक है, वो डाउनलोड नहीं हुए होंगे या बाद में ऐड हुए होंगे बच्चे, तो फिर आई शेयर इट अगेन अभी, ठीक है, राइट आफ्टर द क्लास, ओके मैम। राइट? हाँ, तो लेट मी टेक द अटेंडेंस, उसके बाद यू कैन लीव और फिर मैं नोट्स शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, सो योर अटेंडेंस इज डन। कोई भी प्रॉब्लम आए आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, यू थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंट। thank you, ma'am. ओके Thank you. Thank you, ma'am. ओके बच्चों, बाय बाय।